since I was a kid. I've been legit. You should let her go. She wanted it. तुमसे एक बात बोलनी है. Let me bring this to your notice, or let me be very honest in saying that I don't feel I'm currently in a very good mental space, like in a very good mental spot. Trust me. So what I was saying, to be honest, I don't feel like I'm in a very, 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 very good mental space. Legit. Why? ये तो मेरे को भी नहीं पता है. But एक रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है जहाँ तक, that obviously sometimes it hits you, like the phase which I'm going through. People might think that I have passed my licensing exam. अभी क्या ही है, मेरे को किस बात का स्ट्रेस है. I mean, I'm going through my internship, इसके बाद लाइसेंस मिलेगा, blah blah blah, और you can at least start earning. At least you are not stuck in that phase of that you have not cleared your licensing exams. I mean, I have cleared my licensing exams. I'm very much proud and happy for that, and I have given too much effort, like I have sacrificed too much for that. But the thing is yaar ki until and unless you are at a space, like at a place in your life where you are financially very well off. See, being financially well off and supporting your family is the ultimate, like the biomarker for your mental peace. मेरे हिसाब से currently मैं जिस situation में हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, और कभी कभी ये सब चीज़ दिमाग में आती है. So I feel like कि I'm still very far away from those things. Like I'm still, यार, I'm just leeching out money from my family, so it makes me feel bad. Another thing is कि यार देखो, अभी people might think internship हो जाएगा. अभी ये भी नहीं clear है that my internship can be extended or not. ये थोड़ा सा जो online वाला situation हुआ था, how torturous it is mentally if you are just replicating one more year for the internship, and where you're not learning, to be honest. Internship is not adding something to your CV. Basically doing 2 years or 10 years kitna bhi kar lo. And given that I'm a 17 batch, which I think is the most unluckiest batch, in between that pandemic thing hit and we were all stuck. तुम कैसे बताऊं यार, अभी all these things adding many folds to this stress thing sometimes. और वेन एवर आई एम लाइक कीपिंग माई सेल्फ बिजी ना, देन लाइक ठीक है, तब तो टाइम निकल जाता है. आई जस्ट डू माई वर्क, वर्कआउट, स्लीप, ये वो ब्ला ब्ला सब करके, मतलब अगले दिन उठता हूँ फिर. बट वेन आई गेट द टाइम वेयर आई हैव टू, आई जस्ट गेट टाइम टू थिंक इन सॉलिट्यूड फॉर माई सेल्फ, लाइक how my life is going through, what I am doing, because I retrospect. Like sometimes I sit and retrospect about my life, that हाल फिलहाल मैं कैसा कर रहा हूँ, क्या चल रहा है. So ठीक है, I'm done with like my 60% of internship. कितना ही बचा है? I mean April, May, June, July, 4 months are left, like 4, कह सकते हो 5 months are left. Now the thing is कि, और अभी सामने पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन भी है. अब आई एम नॉट वेरी मच प्रिपेयरिंग फॉर दिस, लाइक बहुत स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ फॉर दिस पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन. क्योंकि यार आई एम येट नॉट श्योर दैट वेल एम आई एलिजिबल फॉर दैट और नॉट. लाइक मैं बेसिकली अगर देखा जाए तो देखो, मेरी 31 जुलाई को इंटर्नशिप, द इंटर्नशिप कट ऑफ डेट इज 31 जुलाई फॉर दिस अपकमिंग नीट PG. आई जॉइन माई इंटर्नशिप ऑन 1st of August, एंड गिवन दैट देयर लाइक बहुत कम लोग होते हैं जिनका एक्सटेंशन नहीं होता है, या फिर लाइक इट इज़ अ वेरी लाइक माइन्यूट नंबर. सो मेरे लाइक एक आध वीक तो अभी तक, एक हफ्ता तो ऐड कर सकते हो. सो आई डोंट नो वेदर माई लाइक एलिजिबल इवन टू गिव दैट पेपर और नॉट. और एक वो चीज़ लाइक हिट नहीं कर पा रही थी अभी तक. आई वॉज स्टडिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट स्टडिंग. आई एम लाइक considering the work, the stress, the internship, the content creation, everything. I'm like, I have given my best, and I'm not very sure that should I give, or whether I give this postgraduate examination or not. This has led me to a dilemma that what should I do. I'm like, जब भी I introspect or get that time in solitude, I just introspect, and I'm just like confused, and then I start getting that stress, anxiety and blah blah blah. अब कल पिछले 2 दिन से ये चीज़ हो रहा है, और I mean वो चीज़ें हो रही है, दिमाग में आ रही है. फिर उसमें क्या होता है कि जस्ट जब स्ट्रेस, तो ऑब्वियसली बात है यार, आई एम अ ह्यूमन. दी कितना भी मैं सख्त लौंडा दिखूँ ऑन द इंटरनेट, बट आई एम अ ह्यूमन. सो व्हेन दी थिंग हिट्स, my whole routine just like screws up, goes down the drain. And now what happens ki
अभी लाइक आई स्किप माई वर्कआउट लाइक इट हैज़ बीन लाइक नहीं कल गया था बट डे बिफोर दैट आई स्किप्ड, उससे पहले गया था उसके पहले 2 दिन आई स्किप्ड। सो ऐसे हो जाता है। सो और उसके बाद आई स्टार्ट ईटिंग दैट। होता है ना कि व्हेन देखो यार एक लिमिट तक ही तो तुम कंट्रोल कर पाओगे। आई एम नॉट दैट ऑफ अ वेरी स्टील माइंडेड पर्सन की डोपामिन मेरे ही कंट्रोल में है, जब चाहूँ तब ऐसे वो कर सकता हूँ, हो जाता है। सो आई मीन आई ईट दैट जंक जस्ट टू गेट दैट pseudo dopamine kicked in। सो अभी मैं इतना तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ जस्ट फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, दी प्राइमरी थिंग टू रिकॉर्ड ऑल दिस लाइक इन माई माइंड। और एक और रीज़न है कि आई एम जस्ट बीइंग दिस वल्नरेबल बिकॉज आई मीन I can't keep all this in my heart and my brain and just let that thing explode. I can't just do. I'm already living alone. I can't like keep too much with me. I have to focus too much on myself and not let stress take over me. सो अभी 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 इस चीज़ का मुझे पता है। देखो दिस हैज़ हैपेंड टू मी इन पास्ट एंड आई हैव टेकन कंट्रोल ओवर इट। कहते हैं ना कि जब तुम एक जगह पहुंच जाते हो, एक लाइक मंजिल पे पहुंच जाते हो, तो तुम्हें पता होता है कि उसका रास्ता कैसा है और उस रास्ते में कैसी परेशानियां तुम्हें दिखेंगी। सो नाउ द थिंग इज़ कि व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, अभी मेरे को जो आ रहा है, सो मैं एक चीज़ मतलब ये स्टार्ट करना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ दैट आई एम नाउ I'm just wanting to nail the coffin। नेल द कॉफिन कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मैंने पढ़ाई तो की है यार, आई स्टडीड लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी पढ़ाई की है, MCQ ओरिएंटेड भी पढ़ाई की है। नाउ आई जस्ट I'm thinking that I will be taking this NEET PG का पेपर। वेदर आई गेट दी सीट और नॉट, मेरा रैंक कैसा आता है, मोबाइल नंबर वाले डिजिट्स में आता है या फिर 4 डिजिट में आता है, 3 डिजिट में आता है, आई डोंट नो। बट आई थिंक कि कितना, आज कितनी तारीख है, आज 13th March है, 13th April, 13th May और 13th June, एग्जैक्टली लाइक 90 डेज़, 15 तारीख से बोलो तो। सो कल होली है एंड आज मैं घर जा सकता था लेकिन मैं गया नहीं। सो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स थोड़ा सा। सो आई थिंक आई विल बी स्टार्टिंग दिस प्रिपरेशन एंड these 90 days आर गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशल। कितना नंबर आता है, कैसा आता है, आई डोंट नो। और आई एम जस्ट गोइंग टू बी वेरी रेडिकल, वेरी लाइक एग्रेसिव इन माई प्रिपरेशन, जैसा मैंने अपने लाइसेंस के लिए किया था वही सारी चीज़ें करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू लाइक गो फॉर दी वेरी वेरी मेन नोट्स। ऑब्वियसली हैं मेन सब्जेक्ट्स, बहुत से सब्जेक्ट्स के मैंने पढ़ लिए, फार्मा, OBG, सर्जरी और क्या और भी किया है मैंने। मेडिसिन भी एक बहुत बड़ा चंक कर लिया है। मैंने सोचा था कि बिफोर दी पोस्ट ग्रेजुएशन आई वुड बी स्टार्टिंग लाइक दी प्री एंड पैरा क्लिनिकल्स विद माई मेन नोट्स, और बाकी ENT और तो ये सब तो PSM कर लूँगा। सो मतलब मोस्टली मतलब मैंने पढ़ा है। सो आई वुड बी जस्ट रिवाइजिंग और अपना जो अप्रोच मैंने अपने लाइसेंसिंग एग्जाम में लिया था वही लूँगा, दैट सेम ग्रैंड टेस्ट अप्रोच, जो भी अप्रोच और जो भी चीज़ होगी आई वुड बी डॉक्यूमेंटिंग दैट एंड आई वुड बी पब्लिशिंग इट ऑन दिस सेम वेरी चैनल। और दिस इज़ माई day 1 ऑफ 90 days टूवर्ड्स NEET PG और लेट्स सी क्या होता है। और गिवन दैट कि मैं अपना लाइक इंटर्नशिप वाला टाइम में भी हूँ और वर्कआउट भी करूँगा, क्योंकि वर्कआउट मिस नहीं करूँगा क्योंकि और कंफर्म भी नहीं है ना कि वेदर एम आई एलिजिबल और नॉट। सो आई जस्ट डोंट वांट टू रिस्क इट ऑल। सो दिस इज़ माई day 1 हाँ, day 1 ऑफ 90 days towards this upcoming NEET PG. Every day would be uploaded or published on this channel. Let's fight this demon. Let's nail the coffin. I don't know कैसा होगा performance मेरा, God knows कैसा होगा मेरा performance, no idea, but I just don't want to be mentally very frustrated, mentally very stressed. I want to give what I have, like I want to give it all. I mean, maybe this can be a very much turning point in my life. क्या पता पेपर हो और उसके बाद अच्छा कुछ आए और मेरी को सीट भी अलॉट हो जाए। नो वन नोस और नो वन नोस। सो आई जस्ट हैव टू गिव ऑल आई हैव। सो चलो, बोर करने के लिए सॉरी, बट this is all coming out from my heart. So this is day 1 of और let's go guys। और मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा,
एक और चीज़, तुम में से कोई भी अगर ऐसा है हु इज़ स्टक और हु इज़ इनटू दिस फेज और थिंकिंग दैट नहीं हो सकता है, लेट्स गिव इट अ चांस, लेट्स लेट्स फाइट दिस टीम इन एटलीस्ट वंस, देखते क्या होता है। और नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट वी वुडंट बी थिंकिंग कि यार कोशिश नहीं की, कोशिश कर लेते हैं ना एक बार। सो पहले मैंने सोचा था कि मतलब घर में नहीं बताऊंगा, आई मीन कि आई वोंट लेट माई पेरेंट्स और फैमिली नो दैट आई वुड बी, मतलब छुप के दे दूंगा कि यार, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना कि पीपल एक्सपेक्ट टू मच व्हेन यू आर गिविंग सम एग्जामिनेशन। मैंने सोचा था नहीं बताऊंगा, बट नाउ आई थिंक आई विल बी गिविंग इट अ शॉट, गिविंग इट अ शॉट, गिविंग इट अ शॉट। लेट्स फ्रीकिंग